morning, students. Today I shall take up the first chapter of your textbooks, which is the best Christmas present in the world. So, let us begin. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. Now, this writer of this lesson is just telling us that in a junk shop where old things are sold, that shop in Bridport, he just found a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. The man, the seller, he told him that it was of the early 19th century and was of oak wood. I had wanted one, but they were far too expensive. He tells that he had always wanted one, but they were too expensive. This one was in a bad condition. Now, this roll-top desk, which the writer was seeing, was in a very bad condition. The roll-top in several pieces. The roll-top of the desk was in several pieces. One leg clumsily mended, scorch marks all down one side. It was going for very little money. Now, the price of it was very little, but it was not a very nice piece. It was very old and battered. I thought I could restore it. Now the writer thought that he could mend it, he could restore it, he could use it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. Now he thought that it would be a risk. It is not a very good deal, but a challenge to mend it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. Now, the writer brings this desk to his garage. I began to work on it on Christmas Eve. It was the day of Christmas and the writer started working on this desk. He started mending it. I removed the roll top completely, the roll top on the desk. He removed it and pulled out the drawers. And of the desk, he pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. The veneer, the layer, the Sanmica or the sheet which was stuck on it had almost lifted everywhere. It had got out from the desk from everywhere. Looked like water damage to me. Now it seemed that it was water that had damaged the desk Sanmica. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. Now, because of the use of fire and water, it had it had ruined the desk. The last drawer was stuck fast. Now the last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. He could not. At times it happens that you are not able to open the drawers. So the last drawer that was there in the desk, the writer was not able to open it. In the end, I used brute force. Now with a lot of force, the writer opened the last drawer. I struck it sharply with the side of my fist. Now he just struck it with his fist. उसने अपने arms के fist से उसको strike किया. The drawer flew open. Now एकदम से वो drawer खुल गया. Open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. Now you would have seen in the drawers in your houses that there inside a drawer there is another drawer which is the secret drawer. There was something in there. वहाँ पे कुछ था. I reached in and took out a small black tin box. Now, the writer found a small tin box in it. Cello-taped to the top of it was a piece of lined note paper. Now, उसके ऊपर cello tape से चिपका हुआ एक note paper था, एक letter था, and written on it in shaky handwriting. Now, शेकी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था. जैसे जब कोई डर जाता है
ये कई लोगों का राइटिंग ऐसा होता है जो थोड़ा सा शेकी होता है, तो इन अ शेकी हैंडराइटिंग इट वाज रिटन, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। उसमें लिखा हुआ था कि ये जिम का लास्ट लेटर है एंड इट वाज रिसीव्ड ऑन दिस डे, टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। और उस पे लिखा था कि जब मैं मरूं तो ये लेटर मेरे साथ बारी होना चाहिए, दफन होना चाहिए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. हाँ, किसी की पर्सनल चीज को छूना गलत होता है, तो ये जो राइटर है वो भी इस बात को रियलाइज कर रहा था कि उसको किसी और की चीज को छूना गलत है। बट क्यूरोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स। मगर राइटर अपनी क्यूरोसिटी को, जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। इट यूजुअली डज। Inside the box there was an envelope. बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था। द एड्रेस रेड, और उस पे एड्रेस लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकफर्सन। उसमें एड्रेस लिखा था मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटपोर्ट, डॉर्सेट। I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top. नाउ ये पेंसिल से लिखा हुआ था एड्रेस, जिसको लेटर भेजा गया था। और तो अब राइटर वो लेटर पढ़ता है। डियर कोनी, जो मिस्टर मैकफर्सन, मिस्टर जिम मैकफर्सन थे, उनकी वाइफ का नाम था कोनी मैकफर्सन। तो जिम मैकफर्सन ने कोनी मैकफर्सन को ये लेटर लिखा था। डियर कोनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. Now उसने कहा कि मैं बहुत आज खुश हूँ, मैं तुमको एक बहुत खुश मन से ये लेटर लिख रहा हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ। We were all standing two in our trenches yesterday morning. कल हम लोग अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। यू नो, कभी भी कोई लड़ाई होती है तो वहां पे एक गड्ढा खोदा जाता है जिसी में छुप के सोल्जर्स अपने राइफल्स चलाते हैं। तो वो लोग सब अपने ट्रेंचेस में खड़े थे, लड़ने के लिए तैयार थे। पूरा एक वॉर सीन यहाँ पे है, बताया गया है। दोनों आर्मीज के लोग तैयार थे लड़ने के लिए। क्रिसमस की मॉर्निंग थी, इट वॉज क्रिसमस मॉर्निंग। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। हर तरफ शांति थी। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। बहुत ही अच्छा दिन था। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। काफी ठंड थी, आपको पता है क्रिसमस के टाइम में तो ठंड भी होती है। और ये जहाँ यूरोप की कहानी है वहां पे तो ठंड क्रिसमस में बहुत ज्यादा पड़ती है। I should like to be able to tell you that we began it. Now लड़ाई शुरू हो गई और जो जिम मैकफर्सन था, इंग्लैंड की तरफ का सोल्जर था, उन्होंने ही लड़ाई शुरू की थी। But the truth I'm ashamed to say is that Fritz began it. अब इन लोगों को लड़ाई शुरू करनी थी, मगर फ्रिट्स यहाँ जर्मनी की आर्मी के लिए यूज किया गया है, तो उन्होंने लड़ाई शुरू की। First someone saw a white flag waving from the trenches opposite. तभी वहां पे देखा कि ऑपोजिट साइड से एक व्हाइट फ्लैग जो है वो वेव हो रहा है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस। तब वो लोग उनके लिए बोल रहे थे फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड। तो दूसरी तरफ से वो लोग बोल रहे थे, जर्मनी के आर्मी वाले, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। अब यहाँ पे वो कहने लग गए, इंग्लिश आर्मी के सोल्जर्स को टॉमी से रेफर किया गया है यहाँ पे। एक वो उनको हैप्पी क्रिसमस विश करने लग गए। When we had got over the surprise, जब उनको जो इंग्लैंड की तरफ वाले थे, जिम मैकफर्सन की तरफ के सोल्जर्स थे, वो तो सब सरप्राइज हो गए। Some of us shouted back, कुछ ने वापस से आवाज लगाई, सेम टू यू फ्रिट्स। जर्मनी की आर्मी के लिए फ्रिट्स यूज किया गया है, तो बोलते सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट। अब we all did. But then suddenly one of them was up there in his grey greatcoat and waving a white flag. तब वहां पे
एक व्हाइट फ्लैग, व्हाइट जनरली पीस को रिप्रेजेंट करता है, तो व्हाइट फ्लैग वहां पे वो लोग वेव करने लग गए जर्मनी की तरफ के सोल्जर्स। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड। तब हुआ कि कोई शूटिंग नहीं होगी, एंड नो वन डिड, और किसी ने शूटिंग की भी नहीं। Then there was another Fritz up on the parapet and another. Keep your heads down, I told Ben. It's a trick, but it wasn't. अब जिम मैकफर्सन को लगा कि ये कोई ट्रिक है जर्मनी के सोल्जर्स की, जो वो लोग खेल रहे, क्योंकि यू नो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर दे से। सो ये तो लड़ाई था, तो हो सकता है कि ये लोग ट्रिक भी खेल रहे हो, तो उसको लगा, मगर ऐसा नहीं था। One of the Germans was waving a bottle above his head. Now वहाँ पे तो पूरा celebration का atmosphere हो गया। It's a Christmas day, Tommy. तब हुआ कि इंग्लैंड के सोल्जर्स को बोला कि ये तो क्रिसमस का दिन है। We have snaps, we have sausages, we meet you, yes. तो यहाँ पे तो पूरी पार्टी एटमॉस्फेयर हो गया। We meet you, yes. By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. अब दोनों का ऐसा यूनियन होने लग गया वहां पे, दोनों आर्मीज का, जर्मनी और इंग्लैंड की आर्मीज का। लिटिल प्राइवेट मॉरिस was the first up. Come on, boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose. But the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle, and I was one of them. I was the part of this. In the middle of the war, we were making peace. Now, both the army people started uniting, they started meeting each other, and the war scene was not there. It was party time for them, both the army of both the countries. So it is such a beautiful scene that in a war situation also such a thing happened. So it's such a beautiful experience that the writer has shared with us, and they are about to party, they are about to celebrate Christmas. All right. You cannot imagine, dearest Connie. Now, Jim Macpherson tells his wife in the letter that तुम imagine नहीं कर सकती हो, Connie, my feelings, that his feelings. And as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me. अब उसने बताया कि एक Fritz officer ने उसको approach किया, hand outstretched, उसका हाथ उसने बाहर निकाला, Hans Wolf, he said. उसने कहा मैं Hans Wolf हूँ, gripping my hand warmly and holding it. Now, Hans Wolf जो एक जर्मन सोल्जर था, ऑफिसर था, और जिम मैकफर्सन, दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। आई एम फ्रॉम डॉसलडॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। उसने कहा मैं हैंस वुल्फ हूँ, मैं डॉसलडॉर्फ का हूँ, और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो प्ले करता हूँ, हैप्पी क्रिसमस। और उसने क्रिसमस विश किया। कैप्टन जिम मैकफर्सन, तब जिम मैकफर्सन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, उसने कहा मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। उसने कहा तुमको भी मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉसेट, मैं डॉसेट में एक स्कूल टीचर हूँ, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्टर्न पार्ट में। डॉसेट, ही स्माइल, उसने कहा कि डॉसेट, आई नो दिस प्लेस, मुझे इस जगह के बारे में मालूम है। I know it well, मैं इस जगह को बहुत अच्छे से जानता हूँ। We shared my rum ration and his excellent sausage, and we talked. Connie, how we talked! He spoke almost perfect English. He was a German, but वो English बिल्कुल perfectly बोलता था. But it turned out that he had never set foot in Dorset, never ever been to England. वो कभी इंग्लैंड नहीं गया था। हैंस वुल्फ जो था वो कभी इंग्लैंड नहीं गया था। He had learned all he
न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने अपनी बुक्स में स्कूल में जो इंग्लैंड के बारे में पढ़ा था उसी से उसको इंग्लैंड के बारे में मालूम था, एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और वो इंग्लिश की बुक्स जो वो पढ़ता था उसी से उसको इंग्लैंड का के बारे में मालूम था. हिज फेवरेट राइटर वाज टॉमस हार्डी. इसका फेवरेट राइटर, आप लोगों ने नाम सुना होगा टॉमस हार्डी का. इसका फेवरेट राइटर जो था वो टॉमस हार्डी था. हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और इसकी फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय एंड डॉसेट. अब इन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करना शुरू कर दिया. He had a wife and one son. उसका एक बेटा था, वाइफ थी घर में, born just 6 months ago, और उसका बेटा जो था वो 6 महीने का था. As I looked about me, there were hundreds of khaki and grey everywhere. हर तरफ दोनों आर्मीज के लोग मिल रहे थे एक दूसरे से. All over no man's land, और ये सब wars ग्राउंड पे चल रहा था. स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग. हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ आवर वंडरफुल क्रिसमस केक. नाउ यू ऑल नो कि क्रिसमस पे क्रिश्चियंस केक जरूर खाते हैं, तो क्रिसमस केक उन लोगों ने शेयर किया. कोनी, ही थॉट द मार्जिपैन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड. आई अग्रीड. अब वो लोगों ने मार्जिपैन खाया. वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी. वो लोग हर बात में एक दूसरे के साथ अग्री करते थे, एक ओपिनियन रखते थे, मगर हकीकत क्या थी कि दोनों एक आर्मी का था और दूसरा दुश्मन आर्मी का था. तो दिस वॉज द सीन. देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक दिस. कौन ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई थी. Then someone I don't know who bought out a football. तभी वहां पे किसी ने एक फुटबॉल निकाली. Great coats were dumped in piles to make goal posts. वहां पे great coats को डाला गया, उनसे goal post बनाए गए. And the next thing we knew it was Tommy against Fritz. अब यहाँ पे England versus Germany शुरू हो गया. Hans Wolf and I looked on and cheered. अब हैंस वुल्फ और उन्होंने देखा और चीयर किया. क्लैपिंग आवर हैंड एंड स्टैम्पिंग आवर फीट. वो लोग अपने ताली बजा रहे थे और पैर से बीट कर रहे थे. टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग. देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड अ ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस. दोनों की जैसे जब सांस लेते हैं तो ब्रेथ्स मिल रही थी, मिंगल कर रही थी. ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड. वो देखा और मुस्कुराया. जिम मैकफर्सन, ही सेड. उसने कहा जिम मैकफर्सन. ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर. उसने कहा ऐसे ही हमें समझौता करना चाहिए. अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच तो होना चाहिए. नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच. फुटबॉल मैच में तो कोई मरता भी नहीं है. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन. कोई भी अनाथ नहीं होता फुटबॉल मैच में. नो वाइफ बिकम्स विडोज. कोई भी विधवा नहीं होता फुटबॉल मैच में. आई प्रेफर क्रिकेट. मगर जिम मैकफर्सन ने कहा कि मैं तो क्रिकेट प्रेफर करता हूँ. देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग. क्योंकि इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी होती है क्रिकेट में, और तो उन्होंने कहा कि हम लोग जीतने के लिए श्योरिटी रख सकते हैं. We laughed at that. उस पे ये लोग हंसे. And together we watched the game. और दोनों ने साथ में गेम देखा. Sad to say, कोनी, Fritz won. जर्मनी की टीम जीत गई. 2 goals to 1. 2 गोल, उनके 2 गोल थे और इनका एक था. But as Hans Wolf generously said, मगर जैसे ही हैंस वुल्फ ने बोला, our goal was wider than theirs. हमारा गोल जो था वो उनसे ज्यादा वाइड था. सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर. तो ये फेयर नहीं था कि तुम लोग अपनी जीत बताओ यहाँ पे. द टाइम केम, टाइम आया. एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड. जब गेम खत्म हो गया, द स्नैप्स एंड द राम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट. जब सब कुछ खत्म हो गया था, उनके पास जो फूड सप्लाईज थे, एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर. और अब सब कुछ खत्म हो गया था. आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून.
that the fighting would end and we could go home. I think that it is what every soldier wants. और सबने विश किया कि वो लोग अपनी फैमिलीज में वापस जाएं, ये लड़ाई जल्दी खत्म हो और वो लोग घर वापस जाएं. आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स. ये तो हर सोल्जर चाहता है कि लड़ाई खत्म हो जाए और वो लोग अपने घर जाएं. टेक केयर जिम मैकफर्सन, हैंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट. नॉर यू. ये मोमेंट तो ऐसा है कि ना कभी मैं भूलूंगा ना कभी तुम भूलोगे. He saluted and walked away from me slowly. उसने सल्यूट किया अनविलिंगली, मतलब वो लोग अलग नहीं होना चाहते थे, बट अनविलिंगली दोनों चले गए वहां से. He turned to wave just once. फिर उसने बाय किया. And then became one of the 100 of grey-coated men drifting back towards their trenches. फिर वो कई लोगों में से उसी भीड़ में शामिल हो गया जर्मनी के आर्मी के सोल्जर्स की. That night, back in our dugout, we heard them singing a carol. अब जैसे आप लोगों को पता होगा क्रिसमस टाइम पे क्रिश्चियंस कैरल्स गाते हैं एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और काफी अच्छे से वो लोग गा रहे थे कैरल्स को. इट वाज स्टिल नाइट, साइलेंट नाइट. Our boys gave them a rousing chorus of Wild Shepherd's Watch. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. उन्होंने कैरल्स एक्सचेंज किए, वो गा रहे थे तो इन्होंने कंटिन्यू किया, कोरस की तरह प्ले किया. We had a time of peace and goodwill. अब ये बहुत अच्छा टाइम था पीस का, गुडविल का. A time I will treasure as long as I live. जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं इस टाइम को ट्रेजर करूंगा. Dearest Connie, by Christmas time next year, अगले साल क्रिसमस तक this war will be nothing but a distant and terrible memory. अगले साल तक ये वॉर खत्म हो चुका होगा. I know from all that happened today, जो कुछ भी आज हुआ है, how much both armies long for peace, कि दोनों आर्मीज कितना पीस चाहती हैं. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट. और हम लोग जल्द ही मिलेंगे. उसने अपनी वाइफ को ये लेटर में लिखा, योर लविंग जिम. ओके, सो टिल हियर आई हैव एक्सप्लेन द चैप्टर. Rest I will continue in the next class. So for now, today the class is over. Okay.